जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्टवेदं मानुषं रूपम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृतः सचेताः प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। अर्जुन कह रहे हैं, अब मेरी जान में जान आई, नहीं तो अब तक बुद्धि का ज्ञान नष्ट हो गया था और चारों ओर भय ही भय दिखाई पड़ता था। इंद्रियां बिल्कुल स्तब्ध और निश्चल हो गई थी। वाणी भी निष्प्राण होकर गूंगी बन गई थी। मन भी डावाडोल हो गया था, परंतु अब वह सारी जीवन अवस्था अपनी ठीक स्थिति में आ गई और मानो फिर से मुझे जीवन प्राप्त हो गया है। इस कृष्ण मूर्ति के दर्शन से फिर से मुझ में प्राण आ गए हैं। हे द्वारका नाथ श्री कृष्ण, आपने मुझे यह दर्शन नहीं दिए हैं, परंतु सूखे हुए वृक्ष पर मेघ वृष्टि की है। मेरे अंतःकरण की भूमि पर आनंद की बेल लहरा रही है और मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हो रहा है। आध्यात्मिक भाव। भगवान की अरूप सत्ता के अतिरिक्त उनके 3 रूप में व्यक्त भाव हैं। एक विश्व रूप, जो साधारण साधक के लिए दर्शनीय नहीं है। यदि कहीं भाग्यवश उसका दर्शन प्राप्त होता है तो उसको सहन करने की क्षमता अधिकांश साधकों में नहीं होती। 2 पुरुषोत्तम रूप, वह नराकृति है और नराकृति नहीं भी है। वह क्या है, यह बतलाने का कोई उपाय नहीं है, पर ब्रह्म के तेज का अनुमान कैसे हो सकता है। प्रत्यक्ष देखने पर ही वह समझ में आता है। जिसने देखा है वही उसका प्रमाण जानता है। वह अगम्य है, इंद्रियों के लिए अगोचर है। बुद्धि वहां जा नहीं सकती, बुद्धि और मन से परे है। वहां पाप पुण्य दोनों ही नहीं है। आत्मानंद के नशे में धुत रहने से किसी विषय में आसक्ति नहीं रही, वह ही निर्माण पद पा गया। 3 द्विभुज रूप, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है। मुरली ध्वनि अविच्छिन्न भाव से प्रणव की मधुर श्रुति हृदय मन को मतवाला कर देती है। उस ध्वनि को सुनते सुनते चित्त लय हो जाता है। देह और जगत की सुधि नहीं रहती। हृदय हरि हरि होत है, मुख की हाजत नाही। अपने आप हृदय में श्याम सुंदर की बंसी बज उठती है। नाम अपने आप ध्वनित होता है और मुंह से नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। When Arjuna thus saw Krishna in his original form, he said, "Seeing this human life form so very beautiful, I am now settled in mind and am restored to my original nature." Arjuna says to Lord Krishna, "O Lord, I now behold thy human form. Now my thoughts are collected and I am serene. I can speak, my senses perform their proper function. My fear has vanished.
Thou hast treated me as a mother would treat her erring child, whom she embraces and nurses. I have drunk the nectar. Now I am alive. Spiritual significance. The formless has been described in 3 forms. 1. Cosmic form. Most difficult for any aspirant to see this form. If seen, it is most difficult for the aspirant to bear it. 2. Purushottam form. It is both with form and formless. Cannot be described in words, can only be experienced. It is beyond senses, mind, and intellect. When the heart is completely purified and gets one-pointed concentration and is drowned in the ocean of Atmic Anand, forgets the world and crosses the barriers of effects of all worldly actions, good and evil, he only reaches the stage of salvation. 3. Human form. The blue boy of Vrindavan, with sweet flute and yellow garb and more mukut, incarnation of love. Melodious tune of Krishna's flute fills the heart and mind of a sadhak, and the sadhak dives deep into the ocean of Atmic Anand. Love oozes out from his heart in the form of spiritual vibrations. Shruti. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 51. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తౌ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్త సచేత ప్రకృతిం గతః. అర్జునుడిలా అన్నాడు, హే జనార్దన, తమ ఈ అతిశాంత మానవ రూపము చూసి ఇప్పుడు నేను స్థిరచిత్రుడయ్యాను. నేను నా స్వాభావిక స్థితిని పొందాను. అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు నా ప్రాణాలకు ప్రాణం వచ్చింది. లేదంటే ఇప్పటివరకు బుద్ధి యొక్క జ్ఞానం నశించింది. నలువైపులా భయమే భయం కనిపించేది. ఇంద్రియాలు పూర్తిగా స్తబ్దము నిశ్చలమైపోయాయి. వాక్కు కూడా ప్రాణం లేనిదై మోగిపోయింది. మనసు కూడా నిలకడలేనిదయింది. అయితే ఇప్పుడు ఆ మొత్తం జీవన స్థితి తన సరియైన స్థితిలోకి వచ్చింది. నాకు మరలా ప్రాణం వచ్చిందనుకోండి. ఈ కృష్ణమూర్తి దర్శనంతో మరలా నాకు ప్రాణాలు వచ్చాయి. హే ద్వారకానాథ శ్రీకృష్ణ, మీరు నాకు ఈ దర్శనాన్ని ఇవ్వలేదు, కానీ ఎండిపోయిన వృక్షంపై మేఘవృష్టి కురిపించారు. నా అంతఃకరణ భూమిపై ఆనందపు అలా కదలాడుచున్నది. ఇప్పుడు నాకు అత్యంత ఆనందం లభిస్తున్నది. ఆధ్యాత్మిక భావము. భగవాన్ని రూపరహిత శక్తికి అదనముగా దాని 3 రూపముల్లో వ్యక్తమయ్యే భావములు. 1 విశ్వరూపము, 2 పురుషోత్తమ రూపము, 3 ద్విభుజ రూపము. విశ్వరూపము ఇది సామాన్య సాధకునికి దర్శనీయం కాదు. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా అదృష్టశాత్తు ఆ విశ్వరూప దర్శనం లభించినట్టయితే దాన్ని సహించే శక్తి ఎక్కువ మంది సాధకులకు ఉండదు. 2 పురుషోత్తమ రూపం ఇది నరాకృతి మరియు నరాకృతి కానిది కూడా ఉంటుంది. అది ఏమిటో దాన్ని చెప్పుటకు ఏ ఉపాయం లేదు. పరబ్రహ్మ యొక్క తేజమును ఎలా ఊహించగలమో? ప్రత్యక్షంగా చూసినా కూడా అది అర్థం కాదు. ఎవరైతే చూశాడో అతడే దాని ప్రమాణాన్ని గ్రహిస్తాడు. అది అగమ్యము, ఇంద్రియాలకు అగోచరము, బుద్ధి అతడికి చేరుకోజేయదు. అది బుద్ధి మరియు మనసులకు అతీతమైనది. అక్కడ పాపపుణ్యములు రెండూ లేవు. ఆత్మానందం మత్తులో మునిగి ఉండుడిచే ఏ విషయమందు ఆసక్తి ఉండదు. అటువంటి వాడే నిర్వాణ పదమును పొందినవాడు. 3 ద్విభుజ రూపము. 2 చేతులు గల మురళీధరుడైన శ్యామసుందర రూపము. మురళీ ధ్వని అవిచ్ఛిన్నముగా ప్రణవము యొక్క మధుర శృతి హృదయము మనసు మత్తు కొలుపుతుంది. ఆ ధ్వనిని వింటూ వింటూ చిత్తము దానిలో లయమవుతుంది. దేహ జగత్తు జ్ఞానమే ఉండదు. హృదయ హరి హరి హోతా హై, ముఖకి హాజత్ నహి. హృదయము హరిహరి అంటూ ఉంటుంది, నోటి యొక్క ఆవశ్యకత ఉండదు. శ్యామసుందరుని మురళీనాదము దానంతటదే హృదయంలో మ్రోగుతుంది. నామం దానంతటదే ధ్వనిస్తుంది.
నోటితో నామస్మరణ చేసే అవసరమే ఉండదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 51. അർജുന വചനം. ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന, ഇദാനീമസ്മി സംവൃതഃ സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ ഈ ശാന്തവും സൗമ്യവുമായ മാനുഷിക രൂപം കണ്ടതോടെ ഇപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. എനിക്ക് ബോധം വീണ്ടും കിട്ടി. ഞാൻ എന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. ഇതുവരെ എന്റെ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭയത്താൽ അസ്വസ്ഥമായിരുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്തംഭിച്ചു പോയിരുന്നു, വാക്കുകൾ പോലും നിലച്ചുപോയിരുന്നു. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ ശാന്തമായ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടതോടെ എന്റെ മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വീണ്ടും സാധാരണ നിലയിലായി. എനിക്ക് വീണ്ടും ജീവൻ ലഭിച്ചതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആത്മീയഭാവം. ഭഗവാന്റെ അരൂപമായ പരമസത്തയ്ക്ക് പുറമെ ഇവിടെ 3 രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. വിശ്വരൂപം, സാധാരണ ഒരു സാധകന് ദർശിക്കാൻ പോലും പ്രയാസമുള്ള രൂപം. ദർശനം ലഭിച്ചാലും അതിന്റെ മഹത്വവും ഭയങ്കരമായ വ്യാപ്തിയും സഹിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല. 2. പുരുഷോത്തമ രൂപം. രൂപമുള്ളതും രൂപമില്ലാത്തതുമായ പരമമായ അവസ്ഥ. വാക്കുകളിലൂടെ പൂർണ്ണമായി വിവരിക്കാനാകാത്തത്. അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതമായ അവസ്ഥയാണിത്. 3. ദ്വിഭുജ രൂപം. വൃന്ദാവനത്തിലെ മുരളീധരനായ ശ്യാമസുന്ദരന്റെ സ്നേഹപൂർണമായ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മുരളീനാദം സാധകന്റെ ഹൃദയത്തെയും മനസ്സിനെയും ആനന്ദത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു. ആ ആത്മീയ ആനന്ദത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ലോകബോധം പോലും മറന്നുപോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. दृष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन, इदानीमस्मि संवृत्तः संचेताः प्रकृतिगतः. हे जनार्दना, तुझे अत्यंत शांत मानवी रूप पाहून मी आता शांत झालेलो आहे आणि माझी नैसर्गिक अवस्था परत प्राप्त झालेली आहे. अर्जुन म्हणाला, आता मला माझी शुद्ध परत आलेली आहे, नाहीतर माझी बुद्धी नाहीशी झाली होती आणि मला सर्वत्र फक्त भीती दिसत होती. माझी इंद्रिय पूर्णपणे सुन्न आणि अस्थिर झाली होती. माझी वाणी निर्जीव आणि मुकी झाली होती. माझे मन अस्थिर झालेले होते, पण आता तो सर्व जीव त्याच्या सामान्य स्थितीत परत आलेला आहे आणि जणू काही मला माझे जीवन परत मिळालेले आहे. या कृष्ण मूर्तीला पाहून मला पुन्हा जीवन मिळालेले आहे. हे द्वारकेच्या राजा, हे श्रीकृष्ण, तू मला हे दर्शन दिले नाहीस, तर एका सुकलेल्या वृक्षावर पावसाचा वर्षाव केलेला आहेस. आनंदाची वेल माझ्या हृदयाच्या भूमीत डोलत आहे आणि मी असीम आनंदाचा अनुभव घेत आहे. आध्यात्मिक भावना. ईश्वराच्या निराकार अस्तित्वाव्यतिरिक्त त्याची 3 रूपे आहेत. नंबर 1, विश्वरूप, जे सामान्य साधकाला दिसत नाही. जर ते योगायोगाने दिसले तर बहुतेक साधकांमध्ये ते सहन करण्याची क्षमता नसते. नंबर 2, पुरुषोत्तम रूप, ते मानवासारखेच आहे आणि कधी कधी मानवासारखे नाही. ते काय आहे याचे वर्णन करण्याचा कुठलाही मार्ग नाही. परमेश्वराच्या तेजाचे मोजमाप कसे करता येईल ते केवळ प्रत्यक्ष दर्शनानेच समजते. ज्यांनी ते पाहिलेले आहे त्यांनाच त्याचे खरे स्वरूप कळते. ते अगम्य आहे, इंद्रियांना अदृश्य आहे. बुद्धी त्याच्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. ते बुद्धी आणि मनाच्या पलीकडे आहे आणि ते पाप किंवा पुण्य नाही. आत्मा आनंदात मग्न राहिल्याने कोणत्याही वस्तूशी आसक्ती राहत नाही. केवळ तीच व्यक्ती सृष्टीची अवस्था प्राप्त करते. नंबर 3, द्विभुज रूप. द्विभुज हे मुरलीधर श्यामसुंदर याचे नाव आहे. मुरलींचा नाद अखंड आहे आणि प्रणवाची मधुर श्रुती हृदय व मनाला धुंद करते. तो नाद ऐकून मन जागृत होते. शरीर आणि जगाची जाणीव राहत नाही. हृदय हरिहरी आहे, मुखाची गरज नाही. श्यामसुंदराची वंशी
हृदयात आपोआप वाजू लागते. नाम आपोआप उच्चारले जाते आणि मुखातून नाम घेण्याची गरज भासत नाही. जेव्हा अर्जुनाने कृष्णाला त्याच्या मूळ रूपात पाहिले तेव्हा तो म्हणाला, हे अत्यंत सुंदर मानवी रूप पाहून माझे मन आता स्थिर झालेले आहे आणि मी माझ्या मूळ स्वभावात परत आलेलो आहे. अर्जुन भगवान कृष्णाला म्हणतो, हे भगवंता, मी आता तुझे मानवी रूप पाहिलेले आहे. आता माझे मन विचार एकाग्र झालेले आहे आणि मी शांत आहे. मी बोलू शकतो. माझी इंद्रिय त्याचे योग्य कार्य करत आहे. माझी भीती नाहीशी झालेली आहे. एखाद्या आईने आपल्या चुकलेल्या मुलाला जसे मिठीत घेऊन संगोपन करावे तसेच तुम्ही माझ्याशी वागलात. मी अमृतप्राशन केले आहे आणि मी जिवंत आहे. आध्यात्मिक महत्व. निराकार स्वरूपाचे 3 रूपांमध्ये वर्णन केलेले आहे. ब्रह्मांडीय स्वरूप. कुठल्याही साधकाला हे स्वरूप पाहणे सर्वात कठीण असते. जरी ते दिसले तरी ते साधकाला सहन करणे अत्यंत कठीण आहे. पुरुषोत्तम स्वरूप हे सगुण आणि निराकार दोन्ही आहेत. त्याचे शब्दामध्ये वर्णन करता येणार नाही. केवळ त्याचा अनुभवच घेता येतो. ते इंद्रिय, मन आणि बुद्धीच्या पलीकडे आहे. जेव्हा हृदय पूर्णपणे शुद्ध होते त्याला एकचित्त एकाग्रता प्राप्त होते आणि ते आत्मिक आनंदाच्या सागरात बुडून जाते. तेव्हा ते जगाला विसरते आणि सांसारिक कर्माच्या चांगल्या वाईट परिणामांचे अडथळे ओलांडते. तेव्हाच तो या अवस्थेपर्यंत पोचतो. मुक्ती. नंबर 3, मानवी स्वरूप. मधुर बासरी वाजविणारा, पिवळे वस्त्र धारण केलेला आणि मोर मुकुट धारण केलेला वृंदावनाचा निळा पुत्र, जो प्रेमाचे मूर्तिमंत रूप आहे. कृष्णाच्या बासरीची मधुर धून साधकांचे हृदय आणि मन भरून टाकते आणि तो साधक अणु आनंदाच्या सागरात खोलवर डुबकी मारतो. त्याच्या हृदयातून आध्यात्मिक स्पंदनाच्या हृदयाच्या रूपात प्रेम हे ओसंडून वाहते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें. धन्यवाद.